Hello dear students. Now we are starting lecture number 5 of 10 plus 1 class of physics subject. Today's topic is about dimensions of a physical quantity. So I hope you have watched my lecture number 3 and 4 where we have studied about physical quantities and we have learned about two types of physical quantities like number 1 fundamental quantities and number 2 derived quantities. Okay, so we have total 7 fundamental quantities. Likewise, these are 7 basic fundamental quantities or also known as primary quantities. We call them as primary quantities as well as fundamental quantities. These are number 1 mass, number 2 length, number 3 time. These three basic fundamental quantities were initially proposed in physics and are used in mechanics. But complete physics cannot be studied only in terms of these three quantities. So some more fundamental quantities were introduced, and these were number 4 temperature, number 5 electric current, number 6 luminous intensity, and number 7 is the quantity of a matter. There are two more supplementary units added here and quantities added here, and these are plane angle and solid angle. We have studied all about these. These 7 are grouped as basic 7 fundamental quantities, and these two are grouped as 2 supplementary fundamental or primary quantities. Okay, so my dear students, why we call them as supplementary? Because they have no dimensional formula. So before discussing the dimension formula, we have to know about what is the meaning of dimensions. But beside this, on the other side, I have written here derived quantities. These are the quantities which are derived from these fundamental quantities. Okay, means every quantity used in science can be expressed either in fundamental quantities or some multiplication or division of these fundamental quantities. Okay, are you understanding what I want to say? I am saying that every quantity of physics or every quantity of science can be expressed in terms of these fundamental quantities or in terms of multiplication or division of these fundamental quantities. For example, if you will talk about speed, so speed is not a fundamental quantity, but speed has a formula, that is distance upon time. These fundamental quantities have no formula. They are complete in themselves. They have no formula. They cannot be divided. They cannot be derived. They in itself are complete. But such quantities like speed, which has a formula like distance upon time, so such quantities are termed as the derived because they are derived from the fundamental. How from the fundamental? You can see here. Distance. Distance means length. Distance means length. So distance is a fundamental quantity, and time is fundamental quantity. So it is a division of two fundamental quantities which is producing the speed. So speed is termed as a derived quantity. Similarly, let me take one simple example, area.
If you will talk about area of a rectangle, say, so this will become length into breadth. So in area, fundamental quantities are length and breadth. But area is a derived quantity because it is obtained by multiplying the two fundamental quantities, that is length into breadth. Okay, here name is different, but both will be measured as a length. Length is a length and breadth is also a length. You can have an area of any shape. Let us talk about the area of a circle. If its radius is r, so its area will become pi r square. Okay, so pi is a number, you all of you know very well, 3.14, and r square radius into radius. R square means r into r. So what is a radius? Radius is the distance between 2 points, that is between center of the circle and the circumference. That is called a radius. So it is also a length. It is also length, and length is what? Length is a fundamental quantity. That means speed derived quantity, area is also a derived quantity. Similarly, we will have thousands of quantities which are derived, but all can be expressed only in these basic fundamental quantities. So we just need to remember the units of these fundamental quantities, and any other derived quantity can be expressed in these quantities, and their units can be obtained from fundamental quantities. So this is all about your primary or fundamental quantities, and derived quantities, you may call them as secondary quantities also. Their another name is secondary quantities also. So let us start now the dimension. What do you mean by dimensions? So let me write the definition of dimension. Okay, so first of all, dimensions क्या होती हैं? This is the definition of dimension. So dimensions of a physical quantity are the powers of or exponents, powers of something. पता है आप लोगों को, पता है पावर क्या होती है? जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 5 power 2, तो 2 is known as the power of 5. So power of exponents to which the fundamental quantities, ये है fundamental quantities आपकी, this is set of fundamental quantities which I am writing here, ठीक है, are to be raised to represent that physical quantity. अगर किसी भी physical quantity को represent करना है, represent means उसको अपने measure करना है, उसकी यूनिट निकालने हैं, या उस physical quantity के बारे में कुछ बताना है in term of fundamental quantities, then what powers of these fundamental quantities are needed to represent that fundamental quantity is known as the dimension. Simple words में बोल सकते हैं आप लोग कि किसी भी physical quantity को represent करने के लिए fundamental quantities की जो powers चाहिए होती हैं, उन्हें हम लोग dimensions of that physical quantity कहते हैं, ठीक है। अब हमें किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल में एक्सप्रेस करना है, तो सबसे पहले हमें फंडामेंटल की डायमेंशन चाहिए, राइट। तो फंडामेंटल में मास को रिप्रेजेंट करने के लिए कैपिटल M सिंबल यूज किया जाता है, लेंथ के लिए कैपिटल L यूज होता है, टाइम के लिए कैपिटल T यूज किया जाता है। मास, लेंथ एंड टाइम, एंड ऑल दीज आर enclosed in a square bracket. ये जो ब्रैकेट लगाई जा रही है इसे स्क्वायर ब्रैकेट कहा जाता है। तो मास, लेंथ, टाइम के लिए तो हम लोगों ने M, L और T यूज कर लिया, लेकिन टेम्परेचर के लिए अब T यूज नहीं कर सकते क्योंकि T हमने टाइम के लिए यूज कर लिया, ठीक है। तो ये जो आगे की आपके पास 1, 2, 3, 4 क्वांटिटीज बच गई, इनके SI यूनिट जो हैं उनको एज अ डायमेंशन यूज किया जाता है। अब टेम्परेचर का SI यूनिट केल्विन होता है। अब K को अगर हम खाली ऐसे लिखेंगे तो इसे केल्विन यूनिट माना जाएगा, और अगर इसे मैं स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दूं तो ये टेम्परेचर का डायमेंशन बन जाएगा। बच्चों ध्यान से समझ लो इस बात को, डायमेंशन लिखती बार स्क्वायर ब्रैकेट लगाना बहुत जरूरी है। अगर हम खाली K लिखते हैं तो ये K जो है ये टेम्परेचर का यूनिट होगा, दैट इज केल्विन।
और अगर इस k को हमने स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर दिया तो ये इसका डायमेंशन बन गया। फिर टेम्परेचर का क्या बन गया? डायमेंशन। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट एम्पियर होता है तो उसका डायमेंशन कैपिटल A स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का यूनिट का सिंबल कंडेला होता है तो उसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला है, या डायमेंशन फॉर्मूले की बात में आएगी, उसके डायमेंशन CD हो जाएंगे। और क्वांटिटी ऑफ मैटर का जो यूनिट है वो आप मोल यूज करते हो, तो यहाँ पर इसका अगर डायमेंशन कहीं हमें लिखना पड़ जाए, रिप्रेजेंट करना पड़ जाए, तो MOL मोल स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे। तो ये 7 फंडामेंटल बेसिक क्वांटिटीज आ गई और ये इनके डायमेंशंस आ गए। मींस मास हैज अ डायमेंशन m, लेंथ हैज अ डायमेंशन l, टाइम हैज डायमेंशन t, टेम्परेचर हैज डायमेंशन k, इलेक्ट्रिक करंट हैज A एम्पियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला CD, एंड क्वांटिटी ऑफ मैटर मोल। अब जब कभी भी हमें डायमेंशंस इन क्वांटिटी के रिप्रेजेंट करने होंगे तो हम लोग ये सिंबल यूज करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट के साथ। आगे आता है प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। ये दोनों क्वांटिटीज डायमेंशन लेस हैं। इन क्वांटिटीज के डायमेंशंस नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं ये भी हम समझेंगे अभी थोड़ी देर बाद, ठीक है, फॉर्मूला आएगा इनका भी। तो ये दोनों क्वांटिटीज डायमेंशन लेस होती है, इसीलिए इनको सप्लीमेंट्री इन 7 से अलग किया गया है। ये 7 एक साथ रखी गई हैं क्योंकि इनके डायमेंशंस होते हैं और इन दो क्वांटिटी के डायमेंशंस नहीं होते हैं, तो इन्हें हमने अलग से एक ग्रुप बना के लिखा है जिसे सप्लीमेंट्री कहा गया है। तो ये डायमेंशन लेस है, इनका कई भी डायमेंशन अगर आता है किसी फॉर्मूले में तो हम वहां पर लिखेंगे डायमेंशन लेस क्वांटिटीज। ओके, तो ये तो आगे फंडामेंटल की बात। अब हम बात करते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज की और डायमेंशंस की, जो हम यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं। सो लेट अस टेक अ एग्जांपल ऑफ अ स्पीड। स्पीड का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। आई एम राइटिंग हियर सबसे पहले सिंपल एग्जांपल एरिया ले लेते हैं। लेट अस टॉक अबाउट द एरिया। अब एरिया की बात करें, एरिया कोई भी हो सकता है बच्चों। एरिया मे बी ऑफ एनी शेप। जैसे let us say that this is rectangle and it is L and it is its length and it is its breadth. So its area you will write as length into breadth. Now we are talking about the dimension. हमें इसकी डायमेंशन लानी है, ठीक है। तो एरिया एक डिराइव्ड क्वांटिटीज है। फंडामेंटल की डायमेंशन हमने लिख ली। अब हम अपने एरिया की डायमेंशंस फंडामेंटल में रिड्यूस करेंगे। इस फॉर्मूले को फंडामेंटल डायमेंशंस में एक्सप्रेस करने की कोशिश करेंगे। सो वी शैल ट्राई टू फाइंड आउट कि लेंथ जो है बेसिक 7 फंडामेंटल क्वांटिटी में किसके साथ मैच करती है, किसके जैसा है, सेम काइंड का हमने क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है। यू नो दैट अभी नए हैं आप लोग तो आप एक एक क्वांटिटी को कंपेयर करके देख सकते हैं। जैसे लेंथ आ गया तो पहली क्वांटिटी मास है, तो लेंथ मास में तो मेजर होगी नहीं। आ रही बात समझ में? लेंथ लंबाई होती है, 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस होता है, तो लेंथ किस में मेजर होगी बेटा? लेंथ में मेजर होगी। तो लेंथ का डायमेंशन क्या है यहाँ पर? एल। तो लेंथ के लिए हम लोग एल लिख देंगे। मल्टीप्लाई बाई ब्रेड्थ है। ब्रेड्थ क्या है? नाम अलग हो गया ना, है तो डिस्टेंस ही है 2 पॉइंट के बीच का, है तो ये भी लेंथ ही है, हमने नाम दे दिया इसको अलग कि ये ब्रेड्थ हो गई इसकी, ठीक है, लेकिन है तो ये भी लेंथ। तो लेंथ के लिए फिर से हमने एल लिख दिया। और यहाँ पर ये L इंटू एल जो है ये L2 हो गया। इसे एल स्क्वायर भी पढ़ सकते हैं, पर हम डायमेंशन फॉर्मूले में जनरली पावर्स को उनके नंबर से डिनोट करते हैं, तो इसको एल स्क्वायर ना रीड करके हम L2 पढ़ेंगे, ठीक है। और जब फाइनली आपने बना लिया तो इसे आप स्क्वायर ब्रैकेट में एनक्लोज कर देंगे। आ रही बात समझ में? तो ये जो यहाँ पर L स्क्वायर आया आपका, इसमें ये जो L की पावर I2 ये आपकी लेंथ की डायमेंशन है। दिस इज द डायमेंशन ऑफ लेंथ। L इंटू एल आपका L स्क्वायर हो गया। यहाँ पर ये जो 2 आपको यहाँ पर मिल रहा है, यू विल कॉल इट एज अ डायमेंशन ऑफ लेंथ इन एरिया इज इक्वल टू 2। आ रही है बात समझ में? क्या फॉर्मूला है देखो, सॉरी डेफिनेशन क्या है डायमेंशंस की? डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स और एक्सपोनेंट्स टू विच द फंडामेंटल क्वांटिटी आर टू बी रेज्ड। फंडामेंटल क्वांटिटीज की जो पावर्स होती हैं किसी भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, उन पावर्स को हम उस क्वांटिटी में डायमेंशंस कहते हैं। तो इसमें लेंथ की डायमेंशन क्या होगी बच्चों? 2 हो गई। और कंप्लीट अगर फंडामेंटल में जाना चाहें आप लोग तो बेसिकली हम लोग M, L और T इन
मैकेनिक्स में इन 3 क्वांटिटीज को ज्यादा पढ़ते हैं हम लोग, तो आपने भी कोशिश करनी है कि MLT सभी के डायमेंशन लिखे जाएं। अब जो आ गए वो तो ठीक है, यहाँ पर L के जो डायमेंशन है बच्चों वो 2 आ गए हमारे पास, लेकिन M का नहीं आया तो उसे 0 लिख दो, और T का भी कोई इसमें रेफरेंस नहीं आया तो उसे भी 0 लिख दो। ठीक है, तो अब आप इसे कैसे लिख सकते हो, यहाँ पर देखिए, तो ये निकाल लिया आपने एरिया के लिए L2। ठीक है, अब जब आपने L2 फाइंड आउट कर लिया तो इसे आप अगर ML और T में लिखना चाहें तो M पावर 0 कर देंगे, L की पावर 2 कर दी आपने, और T नहीं है इसमें तो T पावर 0 कर दी। अब ये जो आपने यहाँ पर M0 L2 T0 लिखा और पूरा स्क्वायर ब्रैकेट में जो लिख दिया, इसे आप लोग कहेंगे, इसे आप लोग कहेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एरिया। ये पूरा स्क्वायर ब्रैकेट में जो टर्म बन गई M0 L2 T0, ठीक है, इसे आप क्या कहेंगे बच्चों, इसे कहेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला। और डायमेंशनल फॉर्मूले में जो M L और T की जो पावर्स हैं उन्हें कहेंगे आप डायमेंशंस। कैसे लिखेंगे आप लोग, ऐसे लिखेंगे, देखो, डायमेंशंस ऑफ मास इन एरिया। डायमेंशंस ऑफ मास इन एरिया मतलब एरिया के फॉर्मूले में मास का डायमेंशन मीन मास की पावर कितनी है, कितनी है मास की पावर, 0। उसी प्रकार डायमेंशंस ऑफ लेंथ इन एरिया, एरिया के फॉर्मूले में लेंथ का डायमेंशन मतलब लेंथ की पावर कितनी है, 2। सिमिलरली डायमेंशन ऑफ टाइम इन एरिया इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो मास, लेंथ और टाइम के डायमेंशंस आ गए 0, 2 एंड 0, और डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एरिया हो गया M0 L2 एंड T0। और अगर हम लोग ये जो कुछ हमने ऊपर लिखा, अगर इसको हम इस तरह से लिख दें, एरिया इज इक्वल टू M0 L2 T0, और लेफ्ट हैंड और राइट साइड दोनों फिजिकल क्वांटिटी को भी स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दिया और अपने डायमेंशन फॉर्मूले को भी स्क्वायर क्वांटिटी में लिख दिया, स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दिया, तो ये जो आपने लिखा इसे हम लोग डायमेंशनल इक्वेशन कहते हैं। फिजिकल क्वांटिटी को आपने इक्वेट करके लिख दिया, तो इसे आप लोग क्या कह देते हैं बच्चों, इसे हम लोग कह देते हैं डायमेंशनल इक्वेशन। आई बात समझ में? तो डायमेंशन समझ आए आपको? डायमेंशंस क्या होते हैं? डायमेंशंस आर द पावर्स ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, डायमेंशनल फॉर्मूला होता है एक एक्सप्रेशन है ये, दिस इज ए एक्सप्रेशन और फॉर्मूला which shows which of the fundamental quantity is used to represent the physical quantity। आ रही बात समझ में? जैसे ये डायमेंशनल फॉर्मूला है एरिया का M0 L2 T0, इसका मतलब अगर एरिया आपको रिप्रेजेंट करना है तो एरिया में मास की हमें कोई जरूरत नहीं है, टाइम की हमें कोई जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ लेंथ चाहिए, और वो भी 2 टाइम चाहिए, मतलब 2 बार हमें मेजर करनी पड़ेगी लेंथ। तो आपको पता है, एक बार लेंथ और दूसरी बार उसका ब्रेड्थ। ठीक है, तो ये हमें बताता है कि एरिया के लिए हमें क्या चाहिए, वी नीड ओनली द लेंथ, वी डोंट नीड मास एंड वी डोंट नीड द टाइम। तो डायमेंशनल फॉर्मूला एक ऐसा एक्सप्रेशन है जो हमें ये बताएगा कि कौन सी क्वांटिटी और कितनी पावर के साथ या कितनी बार हमें मेजर करनी पड़ेगी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए। उस एक्सप्रेशन या फॉर्मूले को आप लोग डायमेंशनल फॉर्मूला कहेंगे। और फिर आता है डायमेंशनल इक्वेशन। जब आप किसी फिजिकल क्वांटिटी को उसके डायमेंशनल फॉर्मूले से इक्वेट कर देते हो तो वो डायमेंशनल इक्वेशन बन जाती है। ठीक है, तो अब हमारे पास बहुत सारे यहाँ पर क्वेश्चंस आएंगे, कुछ एक हम करते हैं यहाँ पर। लेट अस टॉक अबाउट एक हमने आज सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पर एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड आउट कर लिया, फंडामेंटल क्वांटिटीज के हमने देख लिए बच्चों। ये आपको लर्न करने हैं, इनको आपने अपनी कॉपी पे लिखना है, लर्न करना है, बस इन्हीं से हमारा बाकी सब कुछ बन जाता है। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पर कुछ और डिराइव्ड क्वांटिटीज के डायमेंशनल फॉर्मूले डिराइव करेंगे। बहुत सारी ऐसी क्वांटिटीज आएगी बच्चों जो आप पहली बार सुनोगे, तो उन क्वांटिटीज को सुन के घबराना नहीं है आपने कि वो क्वांटिटीज क्या हैं। वी आर नॉट स्टडिंग द फिजिक्स, वी आर स्टडिंग द डायमेंशनल फॉर्मूला।
ठीक है, वो क्वांटिटी क्या है, कहाँ से आई, कैसे आई, उसका मीनिंग क्या है, फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, इस बात को लेके आपने घबराना नहीं है बिल्कुल भी। आपने सिर्फ उस क्वांटिटी का फॉर्मूला याद करना है, उससे रिलेटेड फॉर्मूला लर्न करना है और उसका डायमेंशन फॉर्मूला निकालना और उसके यूनिट लिखना जो है उसको सीखना है। तो लेट अस टॉक अबाउट वन बाय वन, धीरे धीरे कुछ एक पढ़ते हैं, कुछ हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। सो लेट अस स्टार्ट हियर। सबसे पहले हमने बात की थी बच्चों यहाँ पर एरिया की। तो एरिया का डायमेंशन फॉर्मूला आप लोगों ने निकाल लिया, M0L2T0। ठीक है, अब डायमेंशनल फॉर्मूले की एक और भी यहाँ पर हमारे लिए सिग्निफिकेंस बढ़ जाती है कि डायमेंशनल फॉर्मूले को देख के हम लोग उसके यूनिट भी निकाल सकते हैं। तो इस देखो, जब एरिया की यूनिट आपने लिखने हो तो m पावर 0 है, हमें मास का यूनिट नहीं चाहिए, हमें l की पावर 2 है, l का यूनिट चाहिए। तो l का जो यूनिट है वो मीटर होता है SI, और पावर कितनी है 2, तो ये मीटर स्क्वायर, तो ये इसका SI यूनिट हो गया बेटा। जिसकी पावर्स 0 होंगी उसके यूनिट हम नहीं लिखेंगे। अगर आप विद 0 पावर लिखेंगे भी तो आपको पता है एनीथिंग रेज टू पावर 0 1 होता है, तो वो वैसे ही खत्म हो जाएगा। तो हम केवल उन्हीं के यूनिट लेंगे जिनकी पावर 0 के अलावा होगी। ठीक है, और एरिया का यही यूनिट होता है, सबको पता है। नो लेट अस टॉक अबाउट वॉल्यूम। हम लोग नेक्स्ट नंबर 2 पे हम लोग बात करते हैं वॉल्यूम की। ठीक है, सबसे पहले आपको वॉल्यूम का पता होना चाहिए। अलग अलग क्वांटिटीज आ जाती हैं, जैसे मान लीजिए ये आप लोगों के पास क्यूब आ गया बच्चों। ठीक है, तो क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वो होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। आ रही बात समझ में? तो लेंथ किस में आएगा बच्चों? एल में। ब्रेड्थ भी किस में आएगा? एल में। हाइट किस में आएगा? बेसिक एल में। ठीक है, मतलब फंडामेंटल क्वांटिटी के साथ कंपेयर करना है कि कौन सी सेम काइंड की फंडामेंटल क्वांटिटी आती है, उसका डायमेंशन यूज करना है आपने यहाँ पर। आ रही है बात समझ में? तो L जब आप इसकी बात करोगे तो बच्चों ये L क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें M नहीं आया, T कहीं नहीं आया, तो आप उसको लिख सकते हो M0L3T0। तो ये आपके पास वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया। ठीक है, ये वॉल्यूम किसी का भी हो सकता है, जरूरी नहीं है ये वॉल्यूम क्यूब का ही हो, कोई भी वॉल्यूम हो, सबका डायमेंशन फॉर्मूला M0L3T0 ही आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग सफियर के वॉल्यूम की बात कर लेते हैं। सफियर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज और सीखने को मिल जाएगी बच्चों कि जितने भी हमारे पास नंबर होते हैं ना, उन नंबर के डायमेंशंस नहीं होते हैं। नंबर खाली एक नंबर रहता है, उसका कोई भी डायमेंशन नहीं आता। नंबर का मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर वगैरह से कोई भी रिलेशन नहीं होता है। नंबर एक मैग्नीट्यूड होता है, तो मैग्नीट्यूड का कभी डायमेंशन नहीं होता। तो जहां भी नंबर आएंगे उनका कोई डायमेंशन नहीं लिखना है। तो 4/3 को छोड़ देंगे, पाई को छोड़ देंगे, आर क्यूब रेडियस हो गया। अभी मैंने बताया रेडियस किस में आएगा बच्चों, सोचो जरा, रेडियस मास में आएगा या लेंथ में आएगा या टाइम में, किस में आएगा? हाँ सोचो सोचो, शाबाश। रेडियस किस में आएगा? लेंथ में आएगा। तो रेडियस के लिए आप लोग एल लिख दोगे, लेकिन इसकी पावर कितनी है? 3, तो यहाँ भी पावर 3 लगानी पड़ेगी आपको। अब देखो इसमें m आया नहीं तो 0 लग गया, l पावर 3 हो गया, t आया नहीं तो पावर 0 लग गई। तो इसको कंपेयर कीजिए और इसको कंपेयर कीजिए, दोनों सेम है। M0L3T0, M0L3T0। ठीक है, जनरली MLT। एक बात और ध्यान से देखिए, ऑर्डर आपने MLT ही रखने की कोशिश करनी है। पहले मास लिखा जाए, फिर लेंथ लिखा जाए, फिर टाइम लिखा जाए। ठीक है, जैसे जैसे आगे आता जाएगा। एक तरीका होता है किसी चीज को लिखने का, उल्टा सीधा भी कर दोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, गलत नहीं होगा, लेकिन जो एक तरीके से और एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में जो लिखा जाता है वो देखने में भी अच्छा लगता है और समझने में भी अच्छा होता है, इसलिए इसका एक ऑर्डर है ये। ठीक है, तो यहाँ से अगर अब आप वॉल्यूम के डायमेंशनल फार्मूला बनाना चाहें तो सिंपल वो क्या बन गया, देखो कोई भी वॉल्यूम होगा आप लोग उसे M0L3T0 कहेंगे या सिंपली L3 भी कह सकते हैं। अब यूनिट बनाना चाहें तो मास का यूनिट नहीं लिखेंगे, लेंथ का यूनिट लिखेंगे मीटर, लेकिन विद पावर कितनी हो जाएगी 3, और टाइम का यूनिट नहीं लिखेंगे हम लोग। तो ये आपके पास वॉल्यूम का SI यूनिट हो गया। ठीक है, आ रही बात समझ में? चलो अब हम आगे बात करते हैं डेंसिटी। ठीक है, नेक्स्ट हम लेते हैं डेंसिटी। एक टर्म पढ़ी आप लोगों ने,
क्या होती है, कैसे होती है, ये सारी फिजिकल क्वांटिटीज हम लोग +1 क्लास में पढ़ेंगे। अभी हमें सिर्फ फॉर्मूलों से बात करनी है। डेंसिटी का फॉर्मूला बहुत पहले से पढ़ते आए हैं, आई नो कुछ बच्चों को मालूम होगा, जिनको मालूम है अच्छी बात है, जिनको मालूम नहीं है वो यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिखा। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। डेंसिटी क्या होता है बच्चों, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। ठीक है, अब मास का डायमेंशनल फॉर्मूला हमें मालूम है, m होता है अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम का अभी फाइंड आउट किया हम लोगों ने, L3 लिखेंगे हम लोग। अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो उसको डिराइव करो। ठीक है, तो ये लर्न करना पड़ेगा आपको, जितने ज्यादा लर्न होंगे उतना आपको आसान होगा। मास के लिए m लिख दिया, वॉल्यूम के लिए L3 लिख दिया, इज इक्वल टू, देखिए ध्यान से, अब सब कुछ हम न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो m एज इट इज आ गया। अब ये l डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाएगा तो सबको पता है पावर नेगेटिव हो जाती है, तो ये l पावर 3 है, प्लस की पावर हो तो ऊपर माइनस हो जाएगी, तो l पावर -3 हो गया। ठीक है, अब इसमें t आया नहीं है तो हम अपने आप लिख देते हैं, t पावर 0 कर देते हैं और इसको स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं। तो ये आपके पास डेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब आप इसके यूनिट की बात करें तो मास की पावर देखो यहाँ पे 1 आ रही है, तो मास का यूनिट लिखना पड़ेगा और वो किलोग्राम हो जाएगा। पावर 1 लिखी नहीं जाती है तो हम लिखेंगे भी नहीं। और L पावर -3 आ रही है तो L का यूनिट मीटर होता है, और पावर -3 है तो हम यहाँ पर -3 कर देंगे, तो ये आपके डेंसिटी के यूनिट आ गए किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को ये समझ आ रहा होगा। ठीक है, तो इस तरह से अब हम और आगे एक या दो और मैं आपको करवाता हूँ यहाँ पे, जस्ट वेट। ओके, सो लेट अस डू क्वांटिटी नंबर 4। हम यहाँ पर ले लेते हैं, स्पीड की बात कर लेते हैं। ओके, सो स्पीड का फॉर्मूला होता है बच्चों डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस आपका किस में आएगा, मास में नहीं आएगा, लेंथ में आएगा, तो डिस्टेंस के लिए हम लोग L लिख देंगे अपॉन टाइम। टाइम किस डायमेंशन क्या है टाइम का, T। मतलब जो जो इनके डायमेंशन है फंडामेंटल क्वांटिटी के जो हमने पढ़े उनको यहाँ पे लिख दिया जाएगा, फिर इनको सॉल्व किया जाएगा, एक लाइन में लिखा जाएगा L_T-1। L ऊपर आ गया विद पावर 1, T आपका डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में चला गया, पावर -1 हो गई, और ये हो गया L_T-1। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो m0L_T-1। तो ये स्पीड का क्या हो गया, डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया, m0L_T-1। ऐसा यूनिट की बात करें तो मास नहीं लिखा जाएगा, लेंथ के यूनिट आ जाएंगे बच्चों, क्या हो जाएंगे, मीटर, और टाइम के यूनिट हो जाएंगे सेकंड विद पावर 1, तो इसे आप मीटर पर सेकंड पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर हम ml और t की डायमेंशंस की बात करें ना स्पीड में, तो मास के डायमेंशन क्या हो गए स्पीड में, 0। लेंथ के डायमेंशन क्या हो गए स्पीड में, 1। टाइम के डायमेंशन क्या हो गए स्पीड में, -1। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा। चलिए वीडियो अब हो गया टाइम हमारा, एक और कर लेते हैं यहाँ पर। जैसे सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं मैं, मान लीजिए एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है स्पीड अपॉन टाइम। ठीक है, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है स्पीड अपॉन टाइम, लेकिन स्पीड का हमने निकाल लिया डायमेंशन फॉर्मूला। क्या निकाला आपने, L_T-1। m0 लिखना जरूरी नहीं है, L_T-1 अपॉन टाइम। टाइम का होता है T। अब इस T को भी आप ऊपर ले जाएंगे तो क्या बनेगा, देखिए L_T-1 ऑलरेडी है, T का पावर 1 है, ऊपर जाके -1 हो गया। T पावर बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, ये बन जाएगा आपके पास L_T-2, और इसे स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज कर लीजिए। ठीक है, m लिखना चाहे तो लिखिए, नहीं लिखना है तो मत लिखिए, कोई गलत नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन ऑर्डर सेम रखने की कोशिश कीजिए। तो L_T-2 आ गया आपके पास एक्सीलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला। अब इसका ऐसा यूनिट बनाना चाहें तो लेंथ के लिए आप लोग मीटर यूज करेंगे, और टाइम के लिए आप लोग सेकंड यूज करते हैं, और पावर -2 तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका क्या हो गया, ऐसा यूनिट हो गया।
यहीं से सीजीएस भी बन जाएगा। देखो मीटर का सीजीएस सेंटीमीटर हो गया, सेकंड का सेकंड ही होता है, तो सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो बच्चों जो मैंने आपको नोट्स में जो डायमेंशनल फार्मूले दिए हुए हैं, अब 1 या 2 दिन तक मैं आपको कोई लेक्चर नहीं देने वाला हूँ, तो आप जो भी मैंने लेक्चर दिया है इसको बार बार देखिए जब तक समझ नहीं आता है, और जितने भी डायमेंशनल फार्मूले मैंने दिए हैं उनको लगभग करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, जो और नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ और डायमेंशनल फार्मूले भी बनाऊंगा तो वो भी मैं आपको सेंड कर दूंगा, लेकिन आप खुद ट्राई कीजिए इनको बनाने की। ओके, टिल देन बाय, टेक केयर।